کی جنگ ہے اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت اب میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ بول پاس جو ہے کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت کی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہو اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں تھی، خان صاحب کے جھنڈے کی نہیں تھی اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی کال پہ، خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر. پاکستان آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یونانیمسلی پاس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر شہریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلا سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے. تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں. ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی اور قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی ہزار سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی. آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی. آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے. یہ کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوج شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی اور جیسے ہی نکلے مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے. شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے. مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس، جیل عرصہ 11 مہینے. ندیم یاسین ہارٹ اٹیک، جیل عرصہ 7 مہینے. عابد رفیق کڈنی ایشوز، جیل عرصہ 10 مہینے. وکاس گجر کینسر، جیل عرصہ 1 مہینہ. عبداللہ عالم کینسر، جیل عرصہ 4 مہینے. افتخار جٹ ہیپیٹائٹس، جیل عرصہ 10 مہینے. جمشید خان 3 مہینے. اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے. دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے. اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب کے پی کے اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی. ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور خوض کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی. ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا. خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا.
ये मुतफ़िका तौर पर हमारा फैसला है। एक आज के दिन सब पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने हैं, हम सब खान साहब ही के लिए थे, ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने ये अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। हमने खान साहब की तहरीक का जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में, वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। डायलॉग का लेटर का जिक्र ज़रूर हुआ है। हम आपको ये बताएं, मीडिया में यहाँ जनाब बात की जाती है, शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ मिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। सबने पहली मरतबा मैंडेट चोरी के बाद भी कहा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लिए अचकज़ई साहब के प्लेटफॉर्म से भी अर्ज़ किया, फिर कमेटी भी बनाई शहादतों के बाद, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इस हालात में कि आपने हमारे सीटें ले भी ली, आपने हमारे बंदों 3 MNAs के खिलाफ, उमर अयूब खान साहब दस्ती के खिलाफ और सुहेल के खिलाफ आपने रेफरेंसेस भी भेजे, आपने हमारे मने लतीफ़ को कन्विक्ट भी करवाया, आपने उनको उठा करके 26वीं तरमीम के लिए वोट के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे। लेकिन खान साहब का यही कहना था मुज़ाकरात मीनिंगफुल हो। अगर उसका है, पार्टी ने फैसला किया कि खान साहब की जो हिदायत आएगी हम करेंगे, लेकिन हम आपको ये कहें कि हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस लेता। जब हमने एक्सेस मांगा कि KPK की बजट के सिलसिले में हमें हिदायत लेनी है, तो वो मीटिंग भी रिफ्यूज़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब की पार्टी तो इस वक्त 4 सूबों में मौजूद थी। एक नेशनल असम्बली में, उसके बजट के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए थी उमर अयूब की सरबराही में। सेनेट की भी शिबली फराज साहब की सरबराही में कमेटी खान साहब से मिलने चाहिए थी। इसी तरह सिंध की हमारे MPA जो बजट पे बात करना चाह रहे थे, उसकी भी मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब के बचत साहब की सरबराही में भी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। कि इस एक बंदे का एक जब हमने नाम दिया वो भी हमारे पास नहीं आया, तो इस पर भी हमने जिक्र किया। दूसरी बात, रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 21 सीट 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें KPK की। KPK की जो 25 सीटें, 4 रिजर्व और 21 वोमेन की, ये अगर अपोजिशन जमातों के पास चली भी जाए, जो हम कह रहे हैं उनकी जीती हुई या बरानाम जीती हुई सीटों से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मेंबरान शार्ट हैं। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ये खान साहब का मैंडेट है और इसका इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। हमले थे नहीं, आपके खुदकुश हमले थे और नहीं वहाँ पे अब्दुर्रहमान के हालात थे। तो जिन्होंने हालात बनाए हैं, कभी DG SPR साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो। मेरे भाई वहाँ पे पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है, बस वो तुम ही सवाल करते हो। वो पर्ची के अलावा कहीं लफ्ज़ ऐड ही कर लिया करो, आप भी ऐड कर लिया करो। जो मफरूजा मेरे पे कह रहे हो कि जी मेरे खिलाफ मेरे अपनी पार्टी में लोग हैं जो मुझे गिरा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी कर लेना है। तो जाकर आपको दावा मिलती है, बैठे होते हैं, मैं सब देखता हूँ आपको। एक सवाल मेरी तरफ से भी करना कि DG SPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहाँ स्टैंड करते हैं? बेशक ये जंग भी हो गई है, हमें खुशी है, हमने मुकाबला जीत लिया, हमें खुशी है, हमें फख्र है, हमने भी साथ दिया है, इमरान खान ने साथ दिया है उसमें। लेकिन ये बताओ कि पब्लिक सर्वे का भी बता दिया करो उनको। आपको तो पता है पब्लिक सर्वे का कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इस निज़ाम को, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। तो उस सर्वे का भी अगर परसेंटेज नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। लेटेस्ट सर्वे एज पर आर्मी अपनी सर्वे करती रहती है। आर्मी की सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी 88% है। मैं आपको से बताता हूँ, आप ये चला देना और आप ये सवाल जरूर करना
ये उनकी सर्वे के मुताबिक 88% है। कोई कहे साबित करना है, मैं साबित भी कर दूंगा। उनकी सर्वे के मुताबिक, हमारी अवामी सर्वे के मुताबिक 93% है। तो भाईजान जरा ये बातें वहां पे किया करो थोड़ी सी। हमारे पे सवाल की इजाजत होती है। मुल्क पे जुल्म हो रहा है, मुल्क पे जुल्म हो रहा है, मुल्क पे फसाइयत हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। आप जाके सवाल नहीं करते शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से कि तूने पंजाब में जो वतीरा उठाया हुआ है, तुम्हें खातून हो, तुम लोगों के घरों में पुलिस को घुसवा के उनकी फैमिली की तस्वीर करवा रही हो, तुम कहां से बात करती हो ह्यूमन राइट्स की, तुम कहां से जमहूरियत की बात करती हो? ये सवाल तो किया करें उनसे। ये सारी फसाइयत कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है, उनसे सवाल किया करो। देखो एक दिन मरना भी है सबने यार, अल्लाह को जवाब ही देना। कुछ कर लिया करो, अभी नहीं करते हो मेरे पॉइंट चला देना, फिर मेरा हवाला देके पूछ लेना डीजे एसपीआर से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे देगा। अपनी नहीं है सब ये बताइएगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि बाकी बड़ी सीरियस कोशिशें हो रही थी हुकूमत को गिराने की। कौन कोशिश कर रहा था? कि सियासी सतह पे ये कोशिश हो रही थी, कोई पार्टियां मुलव्वस है, गवर्नर है, किस किस्म की कोशिश हो रही थी? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आज बड़ा इजलास था, हम सोच रहे थे कि मुफावत का पैगाम भी जाएगा, लेकिन लड़ाई का पैगाम जा रहा है फिर रियासत के साथ या वैसे सबके साथ। क्या मुफाहमत का रास्ता भी अपनाया जाएगा? क्या आप भी मुज़ाकरात के हक़ में हैं? सवाल का जवाब ये है कि देखें, जब ये शुरू हुआ आपका केस दोबारा रिजर्व सीट वाला, 9 बजे तक हमारा फैसले मेरा मदरवा नहीं हुआ। फिर जब शुरू किया तो जाहिर बात है, क्योंकि फिगर जब कम हो तो जाहिर बात है पोलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और ऐसा जमहूरियत भी करती है कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टॉपल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 कुत्ते उन्होंने गिरा दी हमारे ही लोगों से। ऐसा ही है ना, इधर पाकिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज आई, तो उसमें इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊंगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे, जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं। और इनका पूरा प्लान था, वो प्लान का खत्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ेंगे। तो यार भाई, मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत का मैं अमीन हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ, छुप के नहीं पर मला। अच्छा जी, एक लफ्ज़ में आपसे ऐड कर रहा हूं। आज की मीटिंग है, हमारा कोई डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे इसमें अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब करते हैं, आप भी पूछ लें वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि पेशावर ग्रुप से आपने चैलेंज की बात की। चैलेंज हुकूमत को यही है, एस्टेब्लिशमेंट को 1947 से अब तक, 1947 से को, तीनों को, चारों को, पांचों को का रूल आपके सामने 1947 से अब तक, तो क्या अपने चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे? मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूं। गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा कई दफा लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इक़दामात की बात की आपने, कबायली इलाकों में मरवत में जो सूरत हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फटा से 2 सवाल निकलना चाहिए? क्या सबका ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखें, हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले है, नीचे एरिया मेरे हवाले है, हर एक अपना काम करना है। हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो मुश्किल खत्म हो जाएगी। सर मुझे ये बताइएगा, अभी बात हो रही है कि आपके जितने न किसी को हमने कहा है, किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे अदम एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आज़ाद है, हर एक को छूट है, ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ
کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے. عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس کے پی میں. انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے, امانت کا امین کیسے بنا جاتا ہے.